Friends and dear students, welcome to Erudite School of Learning Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6, Subject Science Chemistry, Chapter number 5 and Lecture number 4. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. टुडे वी विल लर्न द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर. दैट मीन्स व्हाई और हाउ एयर इज इम्पॉर्टेंट टू अस. We all need air to survive. Air contains oxygen and carbon dioxide which are useful to plants and animals. Plants use carbon dioxide present in the air to make their own food by the process called photosynthesis. Let us see how air support life in plants and animals. You all know very well that without air, that means without the oxygen, we are not able to survive on the earth. So, and air contain the oxygen and carbon dioxide which are beneficial to plants and animals in different way. Like humans, animals and the plant take the oxygen for the respiration, for the breathing, while carbon dioxide taken by the plants to make their food by the process of photosynthesis. आप सभी जानते हैं कि बिना हवा के हम क्या कर अर्थ पे सरवाइव नहीं कर सकते या हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि एयर के अंदर क्या होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सारे लिविंग बींग्स के लिए क्या है ज़रूरी है ताकि वो क्या ले सके, सांस ले सके, ब्रीथिंग कर सके. एयर में मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है. नाइट्रोजन इनडायरेक्ट वे में यूज़ होती है, जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट और एनिमल्स के थ्रू अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. जैसे ऑक्सीजन तो आप सबको पता ही है कि जैसे ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं, जबकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं. लेट्स सी हाउ द एयर इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. देखते हैं लाइफ में एयर का क्या रोल है. In plants have tiny pores, stomata, found on the underside of the leaf, or air containing carbon dioxide and oxygen enter the plant through this opening, where carbon dioxide get used in photosynthesis and oxygen in respiration. That means you know very well that on the plant leaf there are very small holes that are known as stomata, through which the exchanging of the gas take place in the plant, and carbon dioxide, which the gas which is absorbed by the plant, used in the photosynthesis, while the oxygen gas is used in the respiration by the plant. प्लांट के अंदर जैसा कि आप जब जानते हैं एक स्टोमेटा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लीव्स में. स्टोमेटा क्या होते हैं, एक छोटे छोटे बहुत ही छोटे क्या होता है होल्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं प्लांट गैस का एक्सचेंज करते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो उनके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में या फिर खाना बनाने में यूज़ आती है, वहीं ऑक्सीजन गैस जो वो स्टोमेटा पोर्स के थ्रू अंदर लेते हैं वो किस में यूज आ जाती है, रेस्पिरेशन में. नेक्स्ट इज इन एनिमल्स. All animals need to respire, be it a cockroach, a fish or an elephant. It's just that they use different organ and mechanism for the respiration. All the animals need to respire, that means to take breath, and we take the oxygen inside while give the carbon dioxide out of the body. So all the animals, whether it's a very tiny animals or from the largest animal like elephant, fish, etc., they all need to respire, because without the respiration the living beings can't survive, they can't be alive. So all the animals breathe by the different using the different organ and by the different mechanism. नेक्स्ट क्या है एनिमल्स. जैसा कि आप जानते हैं सारे एनिमल्स भी क्या होते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं.
कितना ही छोटा जानवर हो या सबसे बड़ा जानवर हो, सभी क्या करते हैं, ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि बिना सांस लिए कोई भी लिविंग थिंग्स जिंदा नहीं रह सकता। सभी एनिमल्स अलग अलग ऑर्गन यूज़ करते हैं और अलग अलग सांस लेने का मैकेनिज्म सबका क्या होता है, जो तरीका होता है रेस्पिरेशन सबका अलग अलग होता है। जैसे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स यूज़ करते हैं, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स लंग्स यूज़ करते हैं, या फिर कुछ स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, या कुछ स्पोर्स के थ्रू जैसे स्टोमेटा या स्पाइरेकल्स जो इंसेक्ट्स की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। Next, in aquatic animals and plant. Most aquatic animals such as fish, tadpole is the larva of the frog. Crab, shrimp have special organ for the respiration called gills. Gills have to take in oxygen, give out the carbon dioxide. Some aquatic animals such as dolphin, whale come out to the surface of the water regularly to take in air since they breathe with the help of the lungs. Aquatic plants such as hydrilla also breathe in oxygen, dissolve in water through their surface. Aquatic means those live in the water. How do aquatic animals and plants breathe? You know very well that the aquatic animals have the gills in place of the lungs. So they breathe through the gills, they take oxygen, dissolve in the water and give the carbon dioxide outside with the help of the gills. But some fish like the dolphin and the whale, they have lungs, they don't have the gills. So at the regular interval of time, they come to the surface of the water, take lots of oxygen at the one time and again back to into water. Whereas aquatic plant example is hydrilla is the name of the aquatic plants. They also breathe, but with their surface, that means the whole body surface, through the whole body surface to take in oxygen and give out the carbon dioxide. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट कैसे सांस लेते हैं या कैसे रेस्पायर करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर क्या होता है, गिल्स होते हैं, जो कि क्या होता है, रेस्पिरेशन ऑर्गन है। जैसे ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स या लिविंग थिंग्स के पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, वैसे पानी में रहने वालों के पास क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं। गिल्स के थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल जैसे डॉल्फिन और व्हेल, ये क्या करते हैं, इनके पास गिल्स नहीं होते, ह्यूमन के जैसे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। तो ये आपने कभी नोटिस या ऑब्जर्व किया होगा, बार बार क्या आते हैं, वाटर के सरफेस के ऊपर या सतह के ऊपर बाहर की तरफ आते, ताकि वो एक टाइम में ही बहुत सारी ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, फिर से पानी में चले जाते हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म होती है, वो फिर से वाटर की सतह की तरफ, ओशन जो पानी की सतह की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ फिर से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर से अंदर चले जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट जैसे हाइड्रिला एक प्लांट का नाम है, वो कैसे रेस्पायर करता है, ब्रीथ करता है अपनी बॉडी सरफेस, मतलब उसकी जो पूरी बॉडी सरफेस है, पूरी बॉडी सरफेस के थ्रू जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। नेक्स्ट इज इन एम्फीबियन। First of all, what is amphibian? Amphibian means those live in plant as well in water. Those live on the land as well as in water. ऐसे एनिमल्स जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग। Amphibians such as frog, newt and salamander. Frog, newt and salamander is the name of the organism, जानवरों के नाम हैं। Need breathing system for the both air and water. Crocodile and alligator swim through the water with a part of their snout above the water surface to breathe easily through the nostril. That means those live in the water as well as on the land, both need the mechanism to respire in air and water. So they breathe through they have lungs and they breathe through their skin also. Some as crocodile and alligator. Crocodile means magamach and alligator means ghadial. They swim. If you have ever noticed, they have long body part near in front of mouth. So they have two holes that
nostrils on their nose. Like humans, they have two holes in their nose, and they come to the surface of the water and breathe through their nose. एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो जो लैंड पे भी रहते हैं और जो पानी के अंदर भी रहते हैं. जैसे फ्रॉग पानी के अंदर भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है. फ्रॉग, न्यूट और सैलेमेंडर, ये किसके नाम है? जानवरों के नाम हैं. न्यूट लिजार्ड जैसी होती है, चिपकली जैसा कुछ एक ऑर्गेनिज्म होता है. सैलेमेंडर भी एक वैसा ही कुछ ऑर्गेनिज्म होता है. इनको क्या ज़रूरत होती है? जो एम्फीबियन होते हैं उनको लैंड पे भी, मतलब ज़मीन पे भी सांस लेने के लिए की ज़रूरत होती है. जब वो पानी में जाते हैं तब भी उनको सांस लेने की ज़रूरत होती है. तो जब वो पानी में जाते हैं तब तो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, जबकि जब वो लैंड पे आते हैं तब वो लंग्स के थ्रू क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं. क्रोकोडाइल और एलिगेटर मीन्स घड़ियाल, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ. ये क्या करते हैं? आपने इनको कभी देखा हो तो इनके आगे का जो मुंह है, जो वो क्या लंबा है, और उस मुंह के आगे क्या है? दो छेद है. जैसे हमारे नाक में है वैसे उनके भी दो क्या है? नोस्ट्रिल्स में दो छेद है. SNOUT स्नाउट, मतलब जो उनके आगे वाला लंबा सा मुंह है उसको बोलते हैं स्नाउट. वो क्या करते हैं? वाटर की सरफेस पे आते हैं. अपना जो आगे वाला जो लंबा माउथ वाला पार्ट है उसको आपने कभी ध्यान से देखा हो तो वो वाटर की सरफेस पे ही रखते हैं, ताकि उसमें से क्या कर सकते हैं? उनके जो दो होल्स हैं नोज़ में, उसके थ्रू वो क्या कर सके? सांस ले सके. नेक्स्ट, इन birds have a sufficient respiratory system as they need high level of oxygen during the flight. Birds have a pair of lungs with the air sac that remain open all the time so that air can easily pass through them. As you know that the bird also have a nose through which it breathe, and birds actually do fly. Birds fly in the air, so they need more energy or more oxygen for the fly in the sky. So they have two pair of lungs through which they can breathe easily. बर्ड्स के पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं. ह्यूमन के जैसे दो लंग्स होते हैं और उसी के थ्रू क्या लेती है? वो रेस्पिरेशन करती है. जैसा कि वो बर्ड्स क्या करती है? हवा में या स्काई में बहुत ऊपर तक उड़ती है, तो उनको उड़ने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है? ज़रूरत होती है. जैसे आप बहुत तेज़ भागते हो या एक्सरसाइज करते हो तो आपको एकदम से क्या होने लग जाता है? आप जोर जोर से सांस लेने लग जाते हो. तो बर्ड्स भी जब कंटिन्यू फ्लाई करती है तो उनको भी क्या होती है? ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो बर्ड्स के पास क्या होता है? लंग्स होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करती है? रेस्पिरेशन. In mammals, most mammals breathe with the help of the lungs. They take in oxygen and give out the carbon dioxide. Mammals like humans, they are included in the mammals. Mammal have some characteristic feature. The scientists made this category on some basic characters. मैमल्स क्या होते हैं? जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक कैटेगरी बनाई है कुछ कैरेक्टर्स देख के, कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने क्या बनाया है? मैमल्स की कैटेगरी बनाई है, जिसमें कौन आते हैं? ह्यूमंस. और कुछ एनिमल्स आते हैं जैसे वेल हो गया, ह्यूमंस हो गए, ये सब किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं. मोस्ट मैमल breathe through the help of lungs. They take in oxygen, give out carbon dioxide. As you know very well that you breathe through the lungs, take in oxygen and give out the carbon dioxide. मैमल्स जैसे ह्यूमन किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं. मैमल्स क्या, उनके पास क्या होता है? लंग्स होता है जिसके थ्रू वो ब्रीथिंग करते हैं. नेक्स्ट इज एक्टिविटी. Aim to show the presence of oxygen in air. That means the oxygen is present in the air. To show this we have to do one activity. एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. मटेरियल नीडेड: बिग बाउल, वाटर, कैंडल, मैच बॉक्स एंड अ ग्लास. बिग बाउल मीन्स बड़ा कटोरा, वाटर, कैंडल, मैच बॉक्स मीन्स माचिस एंड ग्लास. Procedure: take a candle, place it in a big bowl. Second, now fill the bowl with some water and light the candle and cover it with an inverted glass. Observation: the candle keep burning for some time. After time the candle blows out. Conclusion:
Oxygen help in burning. While the oxygen inside the glass is used up, the candle is put out. First of all, what you have to do, take a bowl, fill the bowl less than half of the water, and then light up the candle. After a time, place a glass over the light burning candle, and after some time you will feel the fire is just gone. That means the candle has put out, the fire has put out. How? Why? Because after you when you cover the blowing candle, when you cover the burning candle with the glass, the supply of the oxygen is cut off, and that's why the candle is no more light up, no more burning. आपको क्या करना है, आपने जो बाउल लिया है बड़ा सा, उसमें कैंडल रखनी है, कैंडल को जलाना है, और हाफ से भी कम उसमें क्या भरना है, पानी भरना है। कुछ देर बाद आपको क्या करना है, उस जलती हुई कैंडल के ऊपर ग्लास रख देना है। आप देखेंगे कुछ देर बाद वो कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। क्यों? जैसे आपने उस ग्लास जलती हुई कैंडल के ऊपर ग्लास रखा, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, बंद हो गई। इस वजह से कैंडल क्या हो गई, जलना बंद हो गई। आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या करती है, फायर को क्या करती है, सपोर्ट करती है। और जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, फायर कैंडल जलना भी बंद हो गया। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन साइकिल, दैट मीन्स हाउ ऑक्सीजन इज रेगुलेट इन द एयर। ऑक्सीजन कैसे एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, या कैसे ऑक्सीजन का बैलेंस एटमॉस्फेयर में बना रहता है। The percentage of the oxygen in the air almost remain constant even though it is being continuously used for the respiration and burning. This is because during photosynthesis, plants take in carbon dioxide from the air and release oxygen. Plant and animals and human beings use oxygen for the respiration during the day as well as night. The rate of photosynthesis is very high during the daytime. Plant produce and release much oxygen than they consume during the respiration, and thus the amount of oxygen in the atmosphere is sufficient for the respiration of the animal as well as human beings. Plant and animal are thus interdependent on each other and help to maintain the oxygen cycle. Deforestation and excessive burning of fuel can upset this delicate balance. Therefore, we should plant more trees and use fuel economically. That the percentage of the gases in the atmosphere is constant. That means nitrogen is 78%, carbon dioxide is 0.01%, and the oxygen is 21%. Did you ever think that how this percentage remain constant in the atmosphere? That means through the various process like the respiration, like the burning, like the photosynthesis. You know very well that during you can see the cycle here. During photosynthesis, plant produce the oxygen as the product, okay, food and the oxygen. This oxygen is used in the respiration by the humans and other animals, and also support the burning. And the carbon dioxide released by the human and the other living or produced during the burning, absorbed by the plant, and again this carbon dioxide used in the photosynthesis, and again the oxygen is released after the photosynthesis process. And this cycle keeps continuously going on in our nature, and this is how the balance of all the gases maintained in the atmosphere. ऑक्सीजन साइकिल का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन होती है, उनके परसेंटेज क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में फिक्स होते हैं। जैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% है, नाइट्रोजन का 78 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.01% है। ये सब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में फिक्स्ड होते हैं। तो कभी आपने सोचा है ये जो एटमॉस्फेयर में इनके परसेंटेज है कांस्टेंट कैसे रहते हैं या मेंटेन कैसे रहते हैं? ये सब कैसे मेंटेन रहते हैं? जो नेचर में या जो प्रोसेस हो रहे हैं उसके थ्रू ये क्या रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, बर्निंग हो गया, ये सब
क्या करते हैं, गैसेस के अमाउंट को नेचर में कांस्टेंट रखते हैं, मतलब मेंटेन रखते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में, जैसे आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, जिसमें प्लांट क्या बनाता है, खाना बनाते टाइम एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्व करते हैं, उसको क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ लेते हैं और क्या बनाते हैं, फूड, खाना बनाते हैं। साथ में क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस। वही ऑक्सीजन गैस नेचर में रिलीज़ होती है, फिर ह्यूमंस और एनिमल्स उसको क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन में यूज़ लेते हैं। फिर से ह्यूमंस और एनिमल क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट उसको यूज़ करते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन साइकिल नेचर में चलता रहता है। और ऐसे ही सारी गैसेस के परसेंटेज या अमाउंट क्या होते हैं, नेचर में मेंटेन रहता है। लेकिन आजकल डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट का काटना या प्लांटों को काटना। डिफॉरेस्टेशन मतलब जैसे जैसे आप प्लांट्स को काटते जा रहे हो, प्लांट्स कम होते जा रहे अर्थ पे, या बहुत ज़्यादा कचरा जला रहे हो, फैक्ट्री में से गंदी गंदी गैसेस निकल रही, ये सब क्या कर रहे हैं, सारे जो नेचर में जो गैसेस है जिनके परसेंटेज अमाउंट, उन सबको क्या कर रहे हैं, इम्बैलेंस कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। प्लांट नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगा, ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगा तो हम यूज़ करते जाएंगे, ऑक्सीजन को यूज़ करते जाएंगे, लेकिन फिर से ऑक्सीजन नहीं बनेगी। और ऐसे क्या हो रहा है, हार्मफुल गैसेस की एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, परसेंटेज या अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है। सो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और जितना कम हो सके फ्यूल से चलने वाली चीज़ें होती है, जैसे गाड़ी, व्हीकल जो भी है उसको कम यूज़ करना चाहिए, साइकिल यूज़ करना चाहिए, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉकिंग यूज़ करना चाहिए, हमें वॉक करके जाना चाहिए। So here we complete our lecture. Till then, homework. Class 6 subject science chapter 5th and lecture number 4, and there is only one meaning, that is snout, the long projecting nose. जो क्रोकोडाइल वगैरह जो घड़ियाल होते हैं उनके आगे देखा, और लंबा सा क्या होता है मुंह, उसे हम बोलते हैं स्नाउट। नोट सेंड योर डेली होमवर्क बिफोर 9 o'clock ऑन दिस व्हाट्सअप नंबर 7568077458। नोट डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क गुड हैंड राइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सअप नंबर 7568077458 पे सेंड करना है। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।